میری 14 سالہ حسین سالی کچھ دنوں کے لیے ہمارے گھر رہنے آئی۔ میں جسے بچی سمجھ رہا تھا وہ تو پوری آگ نکلی۔ میری بیوی اسپتال میں اپنی ماں کے ساتھ داخل تھی، اس لیے میری ساس رات کو میری سالی کو میرے پاس چھوڑ گئی۔ میں نے اسے بچی سمجھ کر اپنے ساتھ سلا لیا کہ کہیں وہ نئے گھر میں ڈر نہ جائے، لیکن اس نے تو آدھی رات کو میرے ساتھ بیڈ پر رات کے 12 بجے کے قریب میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں جان گیا کہ میری سالی ندا ہوگی، کیونکہ وہ اس وقت پورے گھر میں اکیلی تھی اور وہ پہلی دفعہ ہمارے گھر رہنے کے لیے آئی تھی، تو شاید اسے رات کو اس پر ڈر لگ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ نیم برہنہ سی نائٹی پہنے دروازے پر کھڑی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، ارشد بھائی، مجھے آپ کے گھر میں بہت خوف محسوس ہو رہا ہے، کیا آپ کے ساتھ آپ کے کمرے میں رات گزار سکتی ہوں؟ میری نظر میں تو ندا ایک 14 سال کی بچی تھی، لیکن میں پہلی بار اسے یوں دیکھ رہا تھا۔ وہ تو کسی گلاب کی کلی کی طرح تر و تازہ تھی۔ 14 سال کی عمر میں ہی اس کا بدن بھرپور جوان ہو گیا تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی ہونے کے باوجود بھی نیم برہنہ نائٹی میں اس کے جسم کا ہر حصہ واضح نظر آ رہا تھا۔ وہ میری بیوی کی چھوٹی بہن تھی۔ یہی سوچ کر میں نے اس کے وجود سے نظر چرائی اور اسے سونے کے لیے صوفے پر تکیہ رکھ کے دے دیا اور خود بیڈ پر لیٹ کر موبائل چلانے لگا۔ میری شادی کو 5 سال ہونے والے تھے اور میری شادی کے وقت ندا ایک 9 سال کی بچی تھی۔ میرا اپنے سسرال بہت کم ہی جانا ہوتا تھا، اس لیے میں ندا کو ابھی تک بچی ہی سمجھ رہا تھا، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ وہ تو بہت ہی قیامت بن چکی ہے۔ میں موبائل میں مگن تھا اور ندا صوفے پر بے چین لیٹی تھی۔ رات کے اس پہر موبائل پر ایک سے بڑھ کر ایک سامان سامنے آ رہا تھا، جس کی وجہ سے میرے سوئے ہوئے جذبات جاگ رہے تھے۔ میں نے ندا کو آواز دے کر پوچھا کہ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ ندا کہنے لگی کہ ارشد بھائی، یہ صوفہ بہت چھوٹا ہے اور میرے پاؤں صوفے سے باہر جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے میں صحیح طرح سے لیٹ نہیں پا رہی۔ ندا کی بات سن کر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ندا، تم بیڈ پر آ جاؤ، میں صوفے پر بیٹھ جاؤں گا۔ ندا جیسے ہی بیڈ پر آئی تو میں اپنا تکیہ لے کر اٹھنے لگا، لیکن ندا نے میرا ہاتھ پکڑ کر روک لیا اور کہنے لگی کہ ارشد بھائی، آپ کیا ساری رات بیٹھے ہی رہیں گے؟ میرے ساتھ یہی بیڈ پر سو جائیں، کوئی پریشانی نہیں ہوگی میرے لیے۔ خود ندا کے جسم سے نظریں ہٹانا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے ندا کی بات مان کر دوسری طرف کروٹ بدلی اور موبائل چلانے لگا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میری آنکھ لگ گئی۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی میری آنکھ کھلی اور میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا جسے میں ایک کم عمر بچی سمجھ رہا ہوں، وہ تو پوری شراب ہے۔ ہر گزرتے پل کے ساتھ میرے دل میں جذبات کا طوفان ٹھاٹھیں مارنے لگا، لیکن میں بہت مشکل سے ہی خود پہ قابو پا رہا تھا۔ لیکن پھر ندا نے میرے ساتھ کچھ ایسا کیا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گیا۔ میری اور صبا کی شادی کو 5 سال گزر چکے تھے اور ان 5 سالوں میں ایسا کوئی دن نہیں تھا جب صبا نے میری خدمت میں کوئی کسر چھوڑی ہو۔ میری اور صبا کی پہلی ملاقات کالج میں ہوئی تھی اور ہم دونوں ایک دوسرے کو پہلی ہی نظر میں پسند آ گئے تھے۔ ہم دونوں کے پیار محبت کا سلسلہ بڑھتے بڑھتے شادی تک پہنچ گیا تھا۔ جب میں نے اپنے گھر والوں کو صبا کے متعلق بتایا تو میری ماں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ خاندان سے باہر وہ کسی صورت میں شادی نہیں کرے گی، لیکن میں صبا کی محبت میں اتنا آگے بڑھ چکا تھا کہ واپسی کا کوئی راستہ ممکن نہیں تھا۔ اس کے بغیر تو ایک پل بھی گزارنا مشکل تھا۔ ہم دونوں اپنے ہی محبت میں ساری حدود پار کرتے ہوئے تمام رشتے قائم کر چکے تھے۔ کالج میں جانے کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر واپس باہر نکل جاتے اور کالج کے پیچھے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے ہوٹلوں میں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے۔ میں اپنی ماں کو منانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کسی بھی صورت میں اس شادی کے لیے راضی نہ ہوئی اور میں نے صبا کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی۔ جب میرے ماں باپ کو اس بارے میں علم ہوا تو انہوں نے مجھے گھر سے ہی نکال دیا، کیونکہ میں کوئی نوکری نہیں کرتا تھا اور نہ ہی میری کوئی کمائی تھی۔ اور جب صبا کے گھر والوں کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ بھی ہماری شادی کے خلاف ہو گئے، اور وجہ یہی تھی کہ میں کچھ بھی نہیں کماتا تھا۔ بہت مشکل سے میں صبا کے گھر والوں کو راضی کر لیا، لیکن صبا کے گھر والوں نے ہم سے ملنا جلنا ختم کر دیا تھا۔ کافی عرصے تک میں اور صبا
फाकों वाली जिंदगी गुजारते रहे, लेकिन जैसे ही मेरी नौकरी लगी और मेरे हालात कुछ बेहतर हुए तो सबा ने अपने घर वालों से मिलना जुलना शुरू कर दिया। लेकिन अब वो लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे, क्योंकि जब मुश्किल हालात थे तो उन्होंने मुझे नहीं अपनाया था और इसलिए मैं सबा के घर ना जाने के बराबर जाता था। साल में 1 या 2 दफ़ा इसलिए मैंने सबा की छोटी बहन निदा को कभी सही से नहीं भी देखा था। ना ही मैं इस बात से वाकिफ था कि अब वो 14 बरस की एक खूबसूरत लड़की बन चुकी है। खुदा ने हमें औलाद की नेमत से कई सालों तक महरूम रखा था और बहुत ज़्यादा इलाज कराने के बाद अब सबा हमारे बच्चे को जन्म देने जा रही थी। मेरे घर वाले तो थे ही नहीं, इसलिए मजबूरन मुझे सबा की माँ को बुलवाना पड़ा और जब हम सबा को अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने बताया कि सबा को 1-2 दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। प्रेगनेंसी के इस अरसा में सबा को बहुत सी बीमारियां लग चुकी थी, इसलिए उसका केस काफ़ी मुश्किल था। सबा के वालिद कहीं शहर से बाहर गए हुए थे, इसलिए सबा की वालदा ने उसकी छोटी बहन को मेरे पास हमारे घर में छोड़ दिया, क्योंकि वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मैं बहुत अरसा बाद सबा की बहन निदा को पहली दफ़ा देख रहा था। मैं उसको देखकर हैरान रह गया था। मैं तो सबा की खूबसूरती का ही दीवाना था, लेकिन उसकी छोटी बहन तो उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी और उसे देखकर मैं सबा को भूल गया था। निदा ने सबा की गैर मौजूदगी में घर के सारे कामकाज बहुत अच्छे से किए और मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि सबा घर में नहीं है। उसने सारे घर को सलीके से साफ सुथरा करके सोने की तैयारी शुरू की तो मैं अपने कमरे में चला आया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं जान गया कि निदा आई है। शायद उसे किसी चीज़ की ज़रूरत थी, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि निदा तो कुछ और ही इरादा लेकर आई है। पहले तो वो सोफे पर आराम से बैठ गई और कहने लगी कि मुझे बहुत ज़्यादा अकेलेपन में खौफ महसूस हो रहा था, क्योंकि ये घर मेरे लिए बिल्कुल नया है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपके कमरे में ही रात गुजार लूँ। मैंने निदा से कहा, अच्छा किया जो तुम चली आई, ये तुम्हारा अपना ही घर है, तुम यहाँ आराम से सो सकती हो। लेकिन निदा को यूं निंबरना नाइटी में देखकर मेरी नज़रें बार बार उसके जिस्म का तवाफ कर रही थीं। मुझसे बातें करते करते वो सोफे पर लेट गई और मैं बहुत मुश्किल से उससे नज़रें चुरा कर अपने फ़ोन में ध्यान लगाने लगा। थोड़ी देर में वो बेचैनी से करवटें बदलने लगी। मेरा ध्यान बार बार भटक कर उसके वजूद पर जा रहा था और जब मैंने उसे बेचैन देखा तो मैं पूछ रहा था कि क्या हुआ। वो कहने लगी, ये सोफ़ा बहुत ज़्यादा गैर आरामदेह है और मैं इस पर आराम से सो नहीं सकती। ये सुनते ही मैंने उसे कहा कि वो बेड पर आकर सो जाए और सोफे पर मैं सो जाऊंगा। वो जैसे ही बेड की तरफ आई तो मैं उठने लगा। निदा ने फौरन ही मेरा हाथ पकड़कर कहा, अरशद भाई, आपको तकलीफ उठाने की क्या ज़रूरत है, ये आपका अपना ही घर है। मैं एक तरफ लेट जाती हूँ, दूसरी तरफ आप लेट जाएं। मैं निदा की बेबाकी देखकर हैरान रह गया, लेकिन मैं खुद भी आराम करना चाहता था। सारा दिन सबा के पीछे मैंने अस्पताल में काफ़ी भागदौड़ की थी, इसलिए मैं बेड पर एक कोने पे लेट गया और अपना मोबाइल चलाने लगा। निदा की मौजूदगी में मैं अपने जज्बात पर काबू पाना मेरे लिए मुश्किल मरला था, जिससे मैं उस वक्त गुजर रहा था। फ़ोन चलाते चलाते मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही ना चला और जब मेरी आँख खुली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे जिस्म पर हाथ फेर रहा है और जब मैं पूरी तरह होश में आया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि निदा मेरे बहुत करीब लेटी हुई थी और उसकी उंगलियां मेरे जिस्म पर हरकत कर रही हैं। मैं एक मर्द था और बहुत कोशिश के बावजूद भी मैं खुद को निदा से दूर ना कर सका और मैं भी करवट बदल कर उसके करीब हो गया। निदा तो जैसे ही बात के इंतज़ार में थी। जैसे ही उसे इल्म हुआ कि मैं उसका साथ देने के लिए तैयार हूँ, वो फ़ौरन ही अपने जज्बात मुझ पर लुटाने लगी और मैंने भी उसके हर जज्बे की खूब पजीराई की। जब हम दोनों अपना मकसद हासिल कर चुके तो निदा ने अपने फ़ोन में मेरे साथ हमारी कई तस्वीर खींची, जिनमें हम दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। निदा के साथ रात गुजार कर मैं ऐसे मसरूर था जैसे कोई कला फतह कर लिया हो, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि यहाँ से मेरी बर्बादी का आगाज़ होने वाला था। फिर मैं अस्पताल जाने के लिए निकल गया। मैं सारा रास्ता खुशी से सरशार जब अस्पताल में पहुंचा तो मेरी बीवी सबा की हालत बहुत ख़राब थी। डॉक्टर ने बताया, सबा जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रही है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। सबा की माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान थी।
जबकि अस्पताल जाकर मेरी हालत भी खराब हो गई थी। सारा दिन मैं सबा के साथ रहा, लेकिन सबा की हालत पहले से बेहतर न हुई। डॉक्टर ने कहा कि कुछ दिन सबा को और अस्पताल में रखना होगा। ये सुनकर न जाने क्यों मुझे अजीब सा सुकून महसूस हुआ कि सबा जितने दिन अस्पताल में रहती, मुझे निदा के साथ वक्त गुजारने का मौका मिल जाता। मैंने डॉक्टर से कहा, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने मुझे तसल्ली दी। मैं रात तक अस्पताल में रहा और रात के वक्त मैं सबा की अम्मी से यह कहकर घर वापस आ गया कि निदा घर पर अकेली होगी। अब मुझे वापस जाना चाहिए, क्योंकि अस्पताल में सबा के साथ किसी औरत को ही रुकने की इजाज़त थी। इसलिए सबा की अम्मी का रहना बहुत ज़रूरी था। मैं जब अस्पताल से घर वापस लौटा तो निदा बहुत खुश थी। अचानक ही वो मुझसे पूछने लगी कि मैं सबा आपी की अलमारी खोल कर देख सकती हूँ। मैंने निदा से कहा, इसमें भला पूछने की कौन सी बात है, तुम्हारी आपी की ही अलमारी है। उसने कहा कि चाबी दें फिर मुझे। मैंने उसे चाबी दे दी और वो सबा की अलमारी खोल कर एक एक चीज़ देखने लगी और सबा जो कपड़े मेरे लिए रात को पहनती निकाल निकाल कर मुझे दिखाने लगी और मुझसे पूछने लगी कि इसमें से आपको कौन सा पसंद है। मैंने एक छोटी सी नीली रंग की नाइटी पर हाथ रखा और उसे कहा कि ये सबा पर बहुत जचती है। ये सुनते ही निदा वो नाइटी उठाकर कमरे से निकल गई और जब काफ़ी देर बाद वापस लौटी तो मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। वो सबा की नाइटी पहने उससे भी कहीं ज्यादा हसीन लग रही थी। अचानक ही वो मेरे आगे आकर मुस्कुराते हुए पूछने लगी कि ये मेरे बदन पर ज्यादा जच रही है या आप ही पर ज्यादा जचती है। ये सुनते ही मैंने उसे अपनी बाहों में भरा और बहुत मोहब्बत से उसे कहा कि ये तुम्हारे बदन पर बहुत खूबसूरत लग रही है। सबा तो ये पहनकर इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी तुम अच्छी लग रही हो। मैंने उसके हाथ में पकड़ा मोबाइल लेकर साइड पे रख दिया और खुद में उस पर अपनी मोहब्बत लुटाने लगा। उसे उस नाइटी में देखकर तो मैं बिल्कुल ही बेकाबू हो गया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि 14 साल की उम्र में कोई लड़की हुस्न की देवी भी हो सकती है, लेकिन निदा तो हुस्न की सारी हदें पार कर रही थी। उसका पूरा ही बदन बहुत हसीन था और मैं हर गुजरते पल के साथ उस पर हावी होता जा रहा था। सारी रात उस पर अपने जज्बात लुटाने के बाद जब मैं सुबह अस्पताल पहुंचा तो मुझे पता चला कि मेरी बीवी ने अभी अभी एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया है। ये सुनकर तो मेरी हालत खराब हो गई। मेरी बीवी की हालत भी बहुत ज़्यादा खराब थी और डॉक्टर उसे ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। शाम तक सबा की हालत कुछ बेहतर हुई तो उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मुझे अपने बच्चे के इंतकाल का बहुत दुख था। मैं सबा को संभालते हुए घर ले आया। सबा को देखकर निदा का चेहरा उतर गया। उसने एक अजीब सी नज़र सबा पर डाली और कमरे में चली गई। मैंने सबा के कमरे में लाकर लिटा दिया। उसकी अम्मी ने मुझे सबा की दवाइयों से मुतल्लिक आगाह किया। मैं सबा की अम्मी के साथ बाहर लाउंज में बैठा उनकी बात सुन रहा था। जब मैंने निदा को सबा के पास जाते हुए देखा, मुझे कुछ खौफ महसूस हुआ, लेकिन मैं जानता था कि निदा ऐसी कोई बात आगे नहीं कहेगी। थोड़ी ही देर में निदा वापस आई और अपनी माँ से कहने लगी, चलें अम्मी, अब घर चलते हैं। और वो दोनों अपने घर चले गए। मैंने निदा को आखिरी बार अलविदाई नज़रों से देखा, क्योंकि मैं जानता था अब हम दोनों का मिलना बहुत मुश्किल है। निदा को जाता देखकर मैंने एक ठंडी आह भरी थी। थोड़ी देर बाद जब मैं दूध का गिलास लिए अपने कमरे में पहुंचा तो सबा गुमसुम सी बैठी थी। मैंने उससे कहा, कोई बात नहीं, अगर एक औलाद चली भी गई है तो हमें अल्लाह और दोबारा औलाद दे देगा। मेरी बात सुनकर सबा ने मुझे बहुत अजीब नज़रों से देखा और कहने लगी, जो मैंने खो दिया है उसे दोबारा पाना मुमकिन ही नहीं। सबा के लहजे ने मुझे चौंका दिया था। मैं उसके आगे ही बैठ गया। उसे कहने लगा, ऐसी बात क्यों कर रही हो? सबा कहने लगी, निदा मेरी सगी बहन नहीं, बल्कि वो मेरी फूफो की बेटी है, जिसे फूफो के इंतकाल के बाद अब्बा हमारे घर ले आए थे। लेकिन निदा को बचपन से ही मुझसे बहुत नफरत थी, क्योंकि घर में हर चीज़ मेरी थी और उसे हर वो चीज़ चाहिए होती जो मेरे पास होती। अब्बा ने कभी उसे किसी चीज़ की कमी महसूस ना होने दी, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुझसे हसद में मुब्तला रही। उसकी नज़र हर उस चीज़ पर होती जो अब्बा मेरे लिए लाते या जिसे मैं पसंद करती। जब मेरी तुमसे शादी हुई तो तुम मेरे घर आया जाया नहीं करते थे और मुझे इस बात की तसल्ली थी कि वो तुम पर अपनी नज़रें नहीं जमाएगी, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था
कि वो मेरे हसद में इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि उसने तुम्हें मुझसे छीनने के लिए वो सब कर दिया जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। सबा की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो मुझसे कह रही थी कि निदा ने जाने से पहले मुझे वो सारी वीडियो दिखा दी हैं और सारी तस्वीर भी दिखाई हैं जिनमें हम दोनों एक साथ थे। सबा की बात सुनकर मैं सदमे में आ गया था। निदा ने सब कुछ जानबूझकर एक मकसद के तहत किया था और मैं उसके हाथों खिलौना बन गया था। सबा की आंखों में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत बाकी बच गई थी। उसने अपनी औलाद भी खो दी थी और शोहर भी। मैं सबा के आगे शर्मिंदगी से सर झुका गया था कि जब सबा ने मुझसे कहा कि वो जाते जाते मुझसे मेरी नीली नाइटी माँ कर ली गई थी क्योंकि वो तुम्हें मुझसे ज्यादा उसके बदन पर झुकती हुई दिखाई देती है। मुझे लगा था जैसे सबा के लफ्जों ने मुझे जमीन में जिंदा गाड़ दिया हो। वक्त जज्बात के हाथों में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर गया था और अब कभी सबा के आगे नजर उठाकर जिंदगी नहीं गुजार सकता था। निदा ने कुछ ही वक्त बाद मुझे ब्लैकमेल करने का सिलसिला शुरू कर दिया था। वो मुझसे हर बार एक बड़ी रकम का तकाजा करती और मेरे ना देने का कहने पर मुझे तस्वीर वायरल करने की धमकी देती। मैं जिसे 14 साल की एक सीधी सादी मासूम बच्ची समझ रहा था, वो दरअसल एक फितना थी जिसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी। मेरा और सबा का ताल्लुक बिल्कुल मुर्दा हो गया था क्योंकि सबा मुझे सिर्फ और सिर्फ नफरत की निगाह से देखती थी। वक्त, लज्जत और मज़े ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। शुक्रिया। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इजहार कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल अगली कहानी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।